Chalo, let's start then. We were at question number 3. Then let's move to next question number 23, 33 ऐसा कुछ तो लिखा. चलो. Hmm, 33 is done. Now let's move to 34. Okay. What is that? Question number 34. Should I display the question? Should I display the question or you are referring it from PDF? Tell me. Should I display the question? You tell me. कोई problem नहीं है. Calculator techniques यार काफी सारे लोगों के पास नहीं है. Calcs. That is why it is creating the problem. तो आज arrive होगा ना? तो आज arrive होगा तो फिर अपन कल ले सकते हैं फिर calculator techniques. Okay? कल पर without fail. Okay? Without fail. Because sufficient time मैंने दिया बीच में. तो कल कर लेते हैं. Yes, what is that? A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7. And they have asked us to find out A plus B plus C by C. क्या करते फिर अपन? Yes, can I get A is to B is to C? Yes, everyone, can I get A is to B is to C? I can easily get it, है ना? मैंने कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो भी उसका डिनोमिनेटर होता है वही उसका रेशियो बन जाता है ना? So A is to B is to C. No need to bring that K into picture. A is equal to 3K, B is equal to 4K, C is equal to 7K. ये सब करने की कोई जरूरत नहीं. Even though it is logically correct, we have shortcut for this. That A is to B is to C is equal to 3 is to 4 is to 7. All right. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? A plus B plus C by C. So what is A? It's 3. What is B? It's 4. What is C? It's 7. And then again I am having C. No, C by C you took. There should be bracket. Okay, Aarti, it is whole bracket. A plus B plus C upon C. So this is what? 14 by 7, which is what? 2. All right. Okay, कुछ problem है किसी को? ये question simple था. If you have any queries, you can ask me. Yes, without any hesitation. Understood everything? Yes. Be consistent. Follow your timelines. अगर कुछ चीजें मिस आउट होती है लेक्चर में से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज के आज ही उसको क्लियर करना है. मैंने पहले ही बोला है. ओके, अगर ये सब चीजें बैकलॉग में रखोगे तो वो बहुत पाइल आउट हो जाएगा and then it will be very difficult to recover. Chalo, P upon Q is given to you as R upon S, which is equal to 2.5 upon 1.5. So फिर yes, I need to find out PS is to QR. How did you get it? Chalo, how did you get it? How did you get the answer of this question? B is the correct answer. Very good. Okay. Very good. Perfect. There are a lot many things to visualize this particular question. I mean, you can visualize it in many ways. है ना? Yes. It's very simple. Everyone got it? किसी ने ट्राई किया एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मैंने भेजा है फाइल में? Yes. That is the first lesson of your practice book. प्रैक्टिस बुक नहीं ले पा रहे हम लोग तो एटलीस्ट उतना तो भी करो जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई है. पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बोल्ड किया है उसमें. आई विल गिव दोज आंसर्स. तो यस, सबसे पहला तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का इज दिस वन. सबसे पहला तरीका इसको सॉल्व करने का, कंसिडर दिस वन. सो P upon Q is equal to R upon S. So this implies what? P into S is equal to Q into R. है ना? तो इसको नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा? PS upon
QR is equal to 1. So PS upon QR, sorry, 1:1. Okay, 1:1. This is the first way. Nothing to do with this. But if you want to use it, you can use it. How? This is your method 1. This is simpler one. Or if you want to use those numbers, still you can use them. कैसे? देखो P upon Q है अपने पास 2.5 upon 1.5. R upon S है अपने पास 2.5 upon 1.5 है ना? What I need to find out? PS upon QR. What is P? We directly take the values है ना? Not to confuse in that 1.5 and 2.5 अपॉन है ना. P का वैल्यू मैंने लिया 2.5 और S का वैल्यू मैंने लिया 1.5. Q का वैल्यू मैंने लिया 1.5 एंड R का वैल्यू मैंने लिया 2.5 है ना. So this and this will go, this and this will go. So PS upon QR is equal to 1 upon 1. This is going to be your answer. 1:1. Okay. Previous, ma'am, are you going to solve the yes, previous year questions में solve करने वाली हूँ, but जो भी extra है ना previous year questions को छोड़ के वो तुम्हें करना पड़ेगा. वो तुम्हारे लिए बना है basically वो questions. Like you should get some extra practice. You should get some questions, some bunch of questions to judge yourself whether you are getting the topics or not. Okay, उसके लिए बनाए हुए हैं जो extra questions है. अभी उसमें क्या हुआ है ना, उस फाइल में मैंने पूरा चैप्टर बना के दिया हुआ है. मतलब उसमें यू विल गेट रेशियो प्रोपोर्शन, यू विल गेट इंडाइसेस, यू विल गेट लॉगरिथम. ओके, तो उसमें सब कुछ बंच करके दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग यस आई एम गोइंग टू एक्चुअली नोट्स में पूरा मॉड्यूल कवर्ड है. नोट्स में तुम्हारे क्लास के नोट्स में पूरा मॉड्यूल कवर्ड है. तो मॉड्यूल की तो जरूरत नहीं है अलग से सॉल्व करने की, बिकॉज यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस इन नोट्स आल्सो. देन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो स्कैनर के क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो मैंने नीचे लिख के दिए हुए नोट्स में, जिसका मैंने तुम लोग को स्कैन कॉपी भेजा है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है उसमें. आई मीन पूरा फाइल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टैक्समैन के क्वेश्चंस एंड पीसी तुलसियान के क्वेश्चन. तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है, those questions we are going to solve, and the taxman and tulsian that you have to solve on your own, because that will, those questions will give you the clarity whether you have done the topic properly or not. Okay, so solve those questions on your own, you will get in confidence, you will get a confidence. तो हम लोग क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं, नोट्स पूरे के पूरे जिसमें तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना. ये दो चीजें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास में. वही बहुत प्रैक्टिस होती है एक्चुअली, सच बोलो तो. बट काफी सारे लोग पिछले सालों में ऐसे थे कि जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारी चीजें चाहिए थी कि मैम हमें समझ में नहीं आता है, मॉड्यूल के क्वेश्चन बार बार करके वो तो रट जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा जो टैक्समैन एंड तुलसियान का हेल्प लेके वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए. ओके, सो यस, यू कैन हैव ए लुक at that question and उसके आंसर की भी मेंशन किए हुए हैं. कोई कोई जगह पे तुम्हें आंसर्स गलत भी दिखेंगे. जस्ट वेरीफाई दोस क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रॉम मी. ओके, क्वेश्चन 36. what they have said, x is to y, page 25 and 25 page and 23 page PDF you sent on the group. I didn't get you. बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो exactly. Is equal to z is to w and that is equal to 2.5 is to 1.5, and they have asked us to calculate x plus z upon y plus w. Try to solve this fast.
भी है ना, नोट्स का पूरा पार्ट मैं क्लास में लेने वाली हूँ, नोट्स का एक क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो नोट्स में मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मेरे खुद के क्वेश्चन, सब कुछ कवर हो चुका है। सो नोट्स जब तुम प्रिपेयर करोगे तो ऐसे समझ के चलो तुमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लिए और मॉड्यूल अच्छे से कर लिया, ओके। बट थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए कुछ कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया, ओके। I bet you are getting, all right. Notes means ये, this one, notes. Practice book अभी तक print ही नहीं हुआ है. That is why I am giving you the scanned questions of PC Tulsian and Taxman. Yes, got the answer for this question? क्या है अपने पास? X upon Y is equal to Z upon W, है ना? So yes, my video is, I mean, स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना, मैं नहीं दिखी तो भी चलेगा, स्क्रीन दिखनी चाहिए। यस, एवरीथिंग इज विजिबल ना प्रॉपर्ली। कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज बारिश हो रही है ना, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। चैतन्य तुम्हारे साइड पे चेक करो बिकॉज नोबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम। अपूर्वा इज नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम, तो हमेशा अपूर्वा को प्रॉब्लम होती है। सो यस, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? x plus z upon y plus w. So yes, x का वैल्यू सीधा 2.5 ले सकते हो, z का वैल्यू सीधा 2.5 ले सकते हो। These are just short tricks ना। 1.5 plus 1.5 तो क्या हो जाएगा फिर? 5.0 अपॉन 3.0 तो क्या हो जाएगा ये? 5/3। ऑल राइट, यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को इस क्वेश्चन में? एनी डाउट टू एनीवन? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ऑल राइट, तुम लोग तो 55 क्रॉस कर चुके हो, बहुत आगे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट, could you please open the question bank as well? Question bank, I didn't get you. 5x minus 3y upon 5y minus 3x। प्रैक्टिस बुक तो स्पेयर नहीं है यार क्लास में, बिकॉज प्रॉब्लम इज वो कभी बनी ही नहीं। उसका सॉफ्ट कॉपी बन रहा था बट प्रिंटिंग के लिए भेजना था तो वो लॉकडाउन पड़ गया। चलो, वी नीड टू फाइंड आउट x अपॉन y। टेल मी फास्ट व्हाट कुड बी द आंसर। नहीं, पूरे देखो, इतना सब तो नहीं होगा सॉल्व, बट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉड्यूल क्वेश्चंस, नोट्स क्वेश्चंस, ये सब अच्छे से हो जाएगा। मॉड्यूल क्वेश्चंस तो ऑलरेडी नोट्स में इंक्लूडेड है, ओके। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू ना, कि मैं नोट्स का क्वेश्चन रखूं क्या साइड में। चलो इतना सॉल्व करो पहले। दैट इज व्हाट इज आई हैड आस्क्ड यू, नोट्स साइड में रखो क्या? चलो ट्राई टू सॉल्व दिस फटाफट। ये तो डेस्कटॉप पे है शायद से, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। बहुत सारे हो गए यार, एक मिनट मुझे ढूंढने दो उसको।
What happened with your network? आज का दिन थोड़ा सा है यार, नेटवर्क के इश्यूज आएंगे आज के दिन. आवाज आ रही है ना? फिर पानी गिर रहा है वो वजह से. फाइल क्यों नहीं मिल रहा है? Just a second, I'm not getting that file. Wait for a minute. Okay. All right. इसलिए मैंने पहले ही पूछा था. लेट ज्वाइन किया शायद से, है ना? देखो क्लास ज्वाइन करना है ना तो टाइम पे ज्वाइन करो यार. अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब नए टॉपिक शुरू हो जाएंगे ना तब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, चलो. नाउ टेल मी फास्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर योर 37th क्वेश्चन. एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी. क्या करोगे यहाँ पे? 4 इंटू सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, है ना? इज इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस 3x. हाउ मच इज दिस? 20x माइनस 12y, 15y माइनस 9x. तो फिर 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y. कितना हो जाएगा ये? 29x इज इक्वल टू 27y. Am I getting the answer? Yes, कुछ गड़बड़ है क्या? Is anything wrong? Is anything wrong? Correct ना? Everything? 29 by 27. All right? तो क्या हो जाएगा? None of these option है अपने पास? Do we have none of these option? Yes. Good. Okay. So yes, let's start it. X upon y is what? 27 upon 9. Now, x upon y is what? 27 upon 9. 29. So it's which option? None of these. Okay. Question 38. Question 38. चलो let's try to solve it. Question 38. ये इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था क्या? इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था, I guess, है ना? Good. A is to B is given to you, which is 3 is to 2. B is to C is given to you, which is 3 is to 5. And we need to find out A is to B is to C. Okay? Yes, you have to make the value of B same, है ना? B का वैल्यू हमें क्या करना है? सेम करना है. That's all you have to do. तो चलो फिर let's make them same. तो ये B दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, और ये B दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ये B दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, और ये B दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. Okay? So what we are going to do? Into 3, into 3, into 2, into 2. So 2 3s are 6 I'm going to get here, है ना? So what is that? अगर मुझे 6 मिल रहा है, तो what is the ratio for this particular thing? For this particular thing, ratio will be 9 is to 6. And for this particular thing, ratio will be 6 is to
10. So what was my target? My target is to make this b same. My target is to make this b same, जो कि सेम हो गया. चेक करो, ये b कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, और ये b कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, है ना. तो b के बदले 6 लिखो. a कितना है तुम्हारा, यस 9 है ना, 9 है. और c कितना है तुम्हारा 10. c is how much 10. So 9 is to 6 is to 10 is going to be your answer. Ab, there is one more thing which you have to remember. A is to B, B is to C, है ना. So what we have, 3 is to 2 and 3 is to 5, है ना. तो इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. सिंपल. ओके, तो कैसे होगा फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10. तुरंत आ जाता है आंसर. इतना सब झमेले करने की जरूरत नहीं कि डायरेक्टली गिव द आंसर. ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है, एनी डाउट, कुछ इश्यूज है तो बताओ. अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, तो शॉर्टकट भी दिमाग में रखो, टाइम बचता है उससे बहुत ज्यादा. चलो क्वेश्चन नंबर 39, दिस वन. ये तो बहुत आसान है. यस, फास्ट, वेरी गुड. x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7. Then we need to find out the value of 2x minus 5y plus 4z upon 2y is equal to what? Yes, easy, बहुत आसान है. वो डिनोमिनेटर के नंबर्स हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे, है ना. चलो, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट. This thing you have to solve. You have to solve fast. Okay. काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है. गुड गुड गुड. मेथड 2 में ना शॉर्टकट है वो. देखो अल्टीमेटली तुम क्या करते हो ना इसमें, अल्टीमेटली तुम ये मेथड 2 में ये जो शॉर्टकट मैंने बताया, इसमें अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे हो, देखो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एंड इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. मतलब यू आर मेकिंग द बी पार्ट सेम, है ना. यू आर मेकिंग दिस बी पार्ट सेम. और जो भी नंबर से तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सी को भी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो अल्टीमेटली यू आर मेकिंग द डिनोमिनेटर बी पार्ट सेम. ओके, दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू वो सब इतना सब डिनोमिनेटर सेम करो, वो करो. इससे अच्छा तुम लोग को देखते ही आंसर मिल जाएगा, है ना, अगर वो एरोज फॉलो करते हो तो. वो शॉर्टकट है. काफी सारे शॉर्टकट्स मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी तुम लोगों को. तो a को क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हम b को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट इज व्हाई हम b को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट इज व्हाई a को 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था. ओके, सो मैं सारे मेथड्स जो मुझे बताया वो सब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को. कोई लोगों को लॉन्ग मेथड अच्छा लग सकता है, कोई लोगों को शॉर्टकट मेथड अच्छा लग सकता है, बट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कैपेबिलिटी, है ना. आई मीन जो तुम्हारे ब्रेन को अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करो. चलो, तो x अपॉन 2 y अपॉन 3 z अपॉन 7. सो x is to y is to z is 2 is to 3 is to 7, है ना. तो क्या हो गया फिर, ये 2x minus 5y plus 4z अपॉन 2y. 2 इंटू x को क्या लेंगे अपन 2 लेंगे, माइनस 5 इंटू y को क्या लेंगे 3 लेंगे, प्लस 4 इंटू z को क्या लेंगे 7 लेंगे. एम आई राइट? होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू y को क्या लेंगे, सॉरी
y को क्या लेंगे 3 लेंगे. So what is this? 2 to the 4 minus 15 plus 28 upon 6. So how much is this? 32 है ना. So कितना आ रहा है ये 17 आ रहा है. 32 minus 15 17 by 6. मैं भूल जाती हूँ कैलकुलेटर अलाउड है. तुम मत भूलना. एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ. हम लोगों ने कभी कैलकुलेटर से किया ही नहीं है. हमारे कोई भी इंटरेस्ट में कैलकुलेटर था ही नहीं. हमें आदत ही नहीं है. But yes, I'm going to use it for you people. चलो डन विथ दिस. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 40. X is to y, 2 is to 3, y is to z, 4 is to 3, and we need to find out x is to y is to z. Sorry, हाँ x is to 3/2 कैसा है कार्तिक? चेक कर एक बार. गड़बड़ कर दी तूने फिर कुछ तो. You have done certain mistake. चलो try to solve it fast. वीकेंड पे क्या क्या किया तुम लोगों ने? वीकेंड कैसे जाता है तुम लोग का? वेब सीरीज सही है. नेटफ्लिक्स. कुछ नहीं किया. ऐसा तो मत करो. चॉकलेट्स बनाए क्या बात है? साफ सफाई, चेस, क्रिकेट. वेरी गुड. गेमिंग, लॉ के मॉड्यूल. ओह, ओ स्टार्टेड विथ न्यू बुक रीडिंग. कौन सा बुक पढ़ रही है? मैंने भी नया बुक स्टार्ट किया कल. यूट्यूब. अच्छा वो लिंक्स देखे क्या श्रावणी तूने जो मैंने भेजे थे? थिंक लाइक ए मंक. वेरी गुड. नाइस 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 नाइस. गुड गुड गुड. बुक रीडिंग इज वेरी गुड. मैंने भी नया बुक शुरू किया. मैं एक लॉन्ग ड्राइव करके भी आई बाहर. नाइस 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 नाइस. सेट 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. गुड गुड. यू टू वॉच द वीडियोस ना. कौन सा वीडियो देखा? श्रावणी और चैतन्य तुम दोनों ने कौन सा वीडियो देखा? वो वाला. उसमें से कौन सा देखा? आई मीन मैं गई थी पिरंगुट साइड. हमारे घर के पास में वही एरिया था ना. पिरंगुट, सुसगांव वगैरह वो सब एरिया. उधर गए थे हम लोग. बारिश हुई थी ना तो हमारे एरिया में काफी ग्रीनरी है. उस साइड गए थे हम लोग. चलो. इन विच एरिया आई लिव? आई लिव इन पाषाण एरिया. अलाउड मतलब ऐसी ड्राइव कर रहे थे ना. ऐसे कहीं पे रुके नहीं थे ऐसा. और इस एरिया में लाइक वो थोड़ा गांव एरिया आता है तो वहां पे ज्यादा पुलिस नहीं रहती. हाईवे साइड के जो ये है ना स्मॉल विलेजेस उधर जनरली नहीं रहती पुलिस वगैरह. हाउ द रेन लाइक? रेन वाज, it was not heavy rain. It was drizzle kind of thing. It was drizzle kind of thing. Arnav, you stay near Pashan? अच्छा इंस्टा पे देखा मैंने संडे का पिक. अरे वो कल का नहीं था. वो कल का नहीं था. वो बहुत पहले का है. It is like 21st February. I scanned my gallery and I got that pic. तो 21st February का है वो पिक जो मैंने कल इंस्टा पे डाला था. चलो बैक टू द क्वेश्चन. अर्नव तुम कहाँ पे रहते हो? Where do you stay? Where do you stay? अच्छा दूर रहते हो फिर काफी. चलो back to the question. X is to y is what? 2 is to 3. And y is to z is what? 4 is to. Okay.
तो क्या हो जाएगा फिर? 3 4s are 12, 2 4s are 8 and 3 3s are 9. देखते हैं आंसर आ जाता है. Okay, 8:12:9. All right. Okay, chalo, let's move to next part. Question number 41. कार्तिक 39th क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते. कैसे कर सकते हो? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते. ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे तुम तीनों को डिवाइड कर सको? नो, है ना. इसका ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे तुम तीनों को डिवाइड कर सकते हो, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हम लोग, है ना. ऑलराइट, चलो. 41. डिविजन ऑफ ₹750 into 3 parts in the ratio 40 का क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा. यस, 40 का नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज से डरो मत यार, बी कॉन्फिडेंट. 750 is divided in 3 parts. Okay, 4:5:6. चलो, tell me फटाफट what it should be. 4:5:6 we have. ऑप्शन टू क्वेश्चन. ये क्या हुआ है? व्हाट इज दिस? ये यहाँ पे स्वाइप हो गया क्या? स्वैप हो गया वो. ये शायद वो इधर होना चाहिए और इधर ये होना चाहिए. स्वैप हो गया वो. चलो ठीक है, I'll make that correction, no? Just a minute. स्वैप हो गया वो. यहाँ पे नन ऑफ दिस चाहिए और and here also I should make that bracket, no? Okay. Yes, 41 got it. Good. Johnny, are you attending? Johnny, good. A option is 200, 250, 300, है ना. तो किससे डिवाइड किया? Yes, by which number you have divided? 50. Yes, 50 से हो रहा है डिविजन. देखो, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो. Only in that case you can make its simplest form when you have some common number to divide 3 of them. Whenever you have some common number to divide 3 of them. So I have that common number. 50 4s are 50, 5s are 56, है ना. 4:5:6. 4:5:6. एंड इनका एडिशन 750 आता है कि वो भी तो चेक करना पड़ेगा मुझे. जब मैं ऑप्शन टू क्वेश्चन जाती हूँ तो मुझे सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, है ना. सो दिस इज योर मेथड 2, ऑप्शन टू क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेथड 1 ऑल्सो. जस्ट अ मिनट. कितना आ रहा है ये? 200, 250, 450. 450 plus 350, it's 750. So both the conditions are matched. Ma'am, we can divide 750 by 50. Yes, that is what we are going to do. Just a minute. I'm going to tell that method also. Okay. So first option में तो सारे conditions satisfy हो रहे हैं, तो no doubt I should take the first option. So no doubt my answer is what? My answer is option A. So this was your method 2. Rakshan, understanding everything? Rakshan, एक जगह पे है ना तू? Concentrated है ना पढ़ाई में? हाँ. पता नहीं कौन सी दुनिया का कैलकुलेटर ढूंढ के लाया था उस दिन उसने. चलो, मेथड 1. मेथड 1. 4:5:6 ना. So either you can think like this, that 4 parts out of how many parts? 4 plus 5 9, 9 plus 6 15.
out of 15 parts, there are 4 parts into 750. How much is this? 200. Then out of 15 parts, this is 5 parts. These are the 5 parts into 750, which is giving me 250. Then out of 15 parts, these are the 6 parts. Okay. So this is how much? This is how much? 3 5s are, 3 2s are, 5 1s are, 5 5s are. Okay. एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया. Just a second. 3 2s are, 3 5s are, 5 5s are. 100 आ रही है. कुछ गड़बड़ हो गया. 750. I'm so sorry. 750. अब सही है. 300. Okay. So method 1 is right. Or else one more way. In one more way you can think is this. You can take common multiple. You can take common multiple. So the parts will be 4x, 5x, 6x. So it's going to be 4x, 5x, 6x is equal to 750. है ना? So this is going to be how much? 15x is equal to 750. So this is going to be how much? 60. है ना? Good. तो 60 है मेरे पास. So I can substitute that 60 here. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 50 आना चाहिए. मेरा concentration has lose हो रहा है बहुत ज़्यादा. I don't know somehow. 4 into 50 is equal to 200. Then 5x is equal to 5 into 50, which is going to be 250. And 6x is what? 6 into 50, which is 300. तो कोई भी मेथड अप्लाई करो जो अच्छा लगे. ओके, जो अच्छा लगे. अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स. ऑलराइट, जो भी अच्छा लगे. मुझे फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये दो मेथड मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. ओके, थोड़े लॉजिकल लगते हैं. तो ये दो मेथड मुझे एक्चुअली पसंद है. ये थोड़ा नॉर्मल वे हो गया. ओके, सो एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? 41 क्वेश्चन को कैसे कैसे विजुलाइज किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? यस, इन मेनी वेज यू कैन विजुलाइज देम. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41. 42. Can we go option to question? Yes, yes, you can go option to question. किसने दिया ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन? हाँ, तू भी भेज सकते हैं श्रावणी. कौन से अलग वे से किया? There are n number of ways in mathematics. Question number 42. पिक भेजा है तूने? Let me check. आया नहीं है अभी तक. Okay, got it. हाँ, चलेगा. Yes, definitely. All right. टाइम चेंज करो ना. 8 to 9 ऑल राइट सबके लिए, या 7:30 बेस्ट है? व्हाट आर योर सजेशंस? 7:30 या फिर 8 to 9? लेट मी टेक दी. ओके, 8 to 9 नहीं ना. मेजॉरिटी वोट जा रहे हैं 7:30 को. तो 7:30 फाइनलाइज करते. सैटरडेज को भी ना? यस, सैटरडेज को भी ना? ओके, ऑलराइट. मुझे कोई प्रॉब्लम, तुम 6:30 बजे बोलोगे तो भी चलेगा मुझे. मैं वैसे भी 5:45 को उठती हूँ. 5:45 को मैं वैसे भी उठती हूँ, तो मुझे 6:30 भी चलेगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. 42. Sum of ages of 3 persons is 150 years. Okay. 10 years ago, their ages were in ratio. Their ages were in ratio. 1 minute. Their ages
were in ratio what 7:8:9. Their present ages are 10 years ago. Their ages in ratio 7:8:9. Their present ages are. Can you tell me? हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. ओके, दो वेज से कर सकते हैं इसको. मेथड 1 पहले बताऊंगी मैं. सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स ना. सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स. Sum of ages is how much? 150 years. 10 years ago, their ages were in ratio 7:8:9, है ना? 10 years ago. Ratio is what? 7:8:9. तो फिर बोलो क्या करोगे आगे? मेथड 1 बताओ. श्रावणी नहीं आया क्वेश्चन? क्यों नहीं आया? ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते थे. ऑप्शन टू क्वेश्चन तो बहुत आसान है. मेथड 1. रेशो कितना है? 10 साल पहले का रेशो. 10 साल पहले का रेशो इज व्हाट? 7:8:9, है ना? So if I take common multiple as x, then ages 10 years ago, ages 10 years ago, what they are going to be? 7x, 8x and 9x. 10 साल पहले ये होंगे तुम्हारे एजेस. तो 10 साल पहले इतना एज था. अभी मान के चलो मेरा 10 साल पहले 18 एज था. तो अभी कितना एज है? 28. क्या किया मैंने? 10 ऐड किया उसमें, राइट? 10 साल पहले मेरा एज था 18. मैंने उसमें 10 ऐड किया. अभी मेरा एज कितना हो गया? 28. तो अभी का एज कितना होगा उनका? प्रेजेंट एजेस 7x plus 10, 8x plus 10, 9x plus 10. ऑलराइट. अब ये जो प्रेजेंट एजेस है इनका एडिशन 150 है. एम आई राइट? प्रेजेंट एजेस का एडिशन कितना है? 150 है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड दीज नंबर्स. आई एम गोइंग टू मेक देम इक्वल टू 150. Okay, I'm going to make them equal to 150. So how much is this? 7 plus 8, 15. 15 plus 9, 24. Plus 30. It is equal to, how much is this? 7x here, na? 150. So x plus, x is equal to 150 by 24. कितना आता है 150 by 24? सॉरी 120 by 24. 120 by 24. 5 आता है. 30 माइनस हो गया ना यहाँ पे. 150 minus 30 is 120. So 24 ones are 24 fives are. So x is equal to what? 5. What I am going to find out? I am going to find out present ages. है ना? I am going to find out present ages. So let me calculate those. Okay. So present ages are x कितना आया अपना? 5 आया. So 7 into 5 plus 10, 8 into 5 plus 10, 9 into 5 plus 10. So how much is this? 45, 50 and 55. श्रावणी got the method 1. सबको मेथड 1 समझ में आया? यस. कुछ प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रहे हैं ना हम लोग.
ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रहे हैं ना हम लोग, वो तो मेरा फेवरेट मेथड है, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती. Yes, definitely. Method 1. Understood method 1? Go through it एक बार. अब स्मार्ट वे है ना. अब स्मार्ट वे मेथड 2. Okay. What is my first option? My first option is 45, 50, 55. तो प्रेजेंट एजेस का एडिशन पहले चेक करो, 150 आता है क्या? 45 प्लस 50 प्लस 55 आ रहा है क्या 150 एडिशन? यस, आ रहा है 150 एडिशन. तो ये ऑप्शन हो सकता है ना. अब उनका कहना है 10 साल पहले उनकी जो एजेस का रेशियो था दैट वाज 7:8:9. क्या कहना है उनका? रीड द क्वेश्चन. 10 years ago the ages were in ratio 7:8:9. So 10 years ago minus 10 minus 10 minus 10. So this is 35, 40, 45. All right. Yes, कुछ गड़बड़ है. 35, 40 and 45. अब इनका रेशियो है क्या 7:8:9? Let's check it out. 5 sevens are, 5 eights are, 5 nines are. So I am getting it as 7:8:9. तो तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया एडिशन वाला, एंड रेशियो वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है ना. एडिशन वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, रेशियो वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. सो माय ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ऑप्शन बी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अच्छा विजुअलाइजेशन आ जाएगा. No need to go for option B because all the conditions are satisfied in option A itself. So no need to go for option B. Okay. So B option ऊपर फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 40, 60, 50. एडिशन कितना आ रहा है? 150 आ रहा है. डेफिनेटली 150 is the addition है ना. 40 plus 60 plus 50. 150 is the addition. Now let's check for the ratios. 10 साल पहले ना, -10, -10, -10. It's 30, 50, 40. So what is going to be the ratio? What is going to be the ratio? Divide by 10 करो. 10 threes are, 10 fives are, 10 fours are. तो 10 साल पहले रेशियो कितना है? 7:3:5, which is not true as per my question. In my question उन्होंने क्या बोला है? 7:8:9 है ना. उन्होंने क्या बोला है? 7:8:9. So as per my question, that is not the true. That is not the true condition. All right. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Understood everything? Yes. My favorite people, non-maths people. Yes. Understood it or not? चलो. Good. श्रावणी तो नॉन मैथ्स में आती है. श्रावणी तो नॉन मैथ्स में आती है. उसके पहले हाँ आ गई, पता है वो, उसने पहले हाँ बोला. 43. सबसे टॉकेटिव लड़की है श्रावणी और अपूर्वा 12th के बैच में. अभी नए लोगों में से कौन है पता नहीं, बट 12th के बैच में तो ये दोनों सबसे टॉकेटिव है. बहुत बातें करते हैं, बहुत. चलो. The numbers are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion. Can you try? चलो fast.
आज नो स्पेक्स। जिस दिन जल्दी जल्दी में तैयार होती हूँ ना मैं, उस दिन स्पेक्स पहनती हूँ। जिस दिन जल्दी रेडी होती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में नहीं तैयार होना पड़ता, उस दिन स्पेक्स नहीं पहनती मैं। आई डोंट लाइक स्पेक्स। हाँ 11th से सब साथ है। श्रावणी तो 12th में ज्वाइन हुई, स्टिल शी इज वेरी टॉकेटिव। चलो बोलो, व्हाट द आंसर एवरीवन फॉर 43 क्वेश्चन? 43rd question, yes, everyone got the answer. We can divide 150 by 24 and then multiply by ratio. Yes, definitely. You can do that 7 by कितना आता है वो, 7 by 15 24, 7 by 24 into वो भी कर सकते हो तुम लोग ऐड करके, इस तरीके से भी जा सकते हो। एक मिनट 150 by 24, नो, व्हाई? बिकॉज 150 प्रेजेंट एजेस का एडिशन है and 7:8:9, that is a ratio of 10 years ago, so you can't do that. Okay, whatever I was saying, that is different thing. उसमें तुम्हें x assume करना पड़ेगा। चलो 16 equal to 35 is to question mark. Why question mark? Because whatever numbers they have given, उसमें से उन्होंने क्या बोला है, ये नंबर रेशो में, प्रपोर्शन में नहीं है। And if I want to get them in proportion, what should be the fourth term? That is the question. मतलब fourth term क्या होनी चाहिए? What should be the fourth term? That is my question. Okay? तो हमें ये fourth term ढूंढनी है। So 14 by 16 equal to 35 upon question mark. So 14 into question mark is equal to 35 into 16. Okay. So question mark is equal to what? 35 into 16 upon 14. क्या हो गया? No, I haven't left 42. चेक करो एक बार, 42 एजेस वाला क्वेश्चन था। कार्तिक ध्यान किधर है? बीच में सो तो नहीं गया? 7 5 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 8 जा। Question mark is what? 40. Yes, 42 लिए 42। क्या हुआ 42 का? क्यों कंफ्यूज हो इतना? 42 43 में से क्यों कंफ्यूज हो इतना? 42 is done, right? पीडीएफ में कुछ और है क्या? मुझे नहीं लगता पीडीएफ में कुछ और है। हाँ एग्जैक्टली अपूर्वा, सब सो गए बीच में। चलो, this is 43 and that 10 years ago, that is 42, 10 years ago वाला क्वेश्चन। ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 44, 10 साल पहले गए। Yes, next question. Can you show answer of 37 again? 37 का आज सुबह सुबह क्या था क्या स्टार्टिंग में? 37 का देख लो फटाफट, तब तक बाकी लोग 44 ट्राई करो। हाँ ओके, कौन सा है फिर वो? अगर तुम डी बोल रहे हो 44 का आंसर, तो फिर वो है कौन सा प्रॉपर्टी? वेरी गुड, परफेक्ट।
स्पीड इज ओके, स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है ना पढ़ाने की? यस, स्पीड इज ऑल राइट एवरीवन? इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन, डेफिनेटली आई विल. उल्टा स्लो है. ओके. नहीं रे, हम मैं कॉमर्स के क्राउड को पढ़ा रही हूँ ना, साइंस के क्राउड को नहीं पढ़ा रही ना. मुझे वो स्टार्टिंग में बहुत इशू हो गया था, वो स्लो डाउन करने के लिए बहुत इशू हो रहा था मुझे. लाइक वो जो स्पीड था मेरा वो अलग इसमें था. और दैट टू जब भी मैंने ज्वाइन किया ना, तब तो मैं आईआईटी के क्लास में पढ़ा रही थी. तो वो स्पीड और ये स्पीड तो ओ माय गॉड, जमीन आसमान का फर्क था. तब तो बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे. चलो क्वेश्चन नंबर 44. नहीं, तुम बुरे नहीं हो, बट वो बहुत आगे. बात ये है, उनकी रिक्वायरमेंट वो है ना, तुम्हारी रिक्वायरमेंट वो नहीं है. ये भी ठीक है, बड़ा डायलॉग मार रहा तू. x upon y is equal to z upon w. So yes, which process is this? This implies what happened, Amruta? In 43rd question, what happened? Yes, tell me what happened. भावना नहीं पोहोचल्या तुझ्या, पटकन बोल. They have given 14, 16, 35 and 42. They are not in proportion. They are not in proportion. Read the question carefully. Okay, they are not in proportion. And what we need to find out? We need to find out the fourth proportion. That means their motive is, or else their question is, to find out this fourth proportion. To find out this fourth proportion, so that the numbers will be in proportion. So that the numbers will be in proportion. तो इस वजह से 42 के जगह पे क्या आना चाहिए? So that the numbers are in proportion. ये उनका question है. All right. Okay, so this implies what? This implies y upon x is equal to w upon z. So this is what? This is which type? This is which property? This is invertendo. And there is no option for invertendo, है ना? A is dividendo, B is componendo, C is alternando, तो D क्या हो जाएगा? None of these. Okay. Next. हाँ, इस प्रॉपर्टी का मैंने मेंशन नहीं किया था बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली फेमस प्रॉपर्टी. एडेंडो नहीं है वो, सबट्रेंडो ही है. यस, सबट्रेंडो ही है बिकॉज वो ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी नहीं है, तो जनरली वो लिस्ट आउट होती भी नहीं, उस पर क्वेश्चन आएगा भी नहीं. बट स्टिल यू शुड नो, लाइक सबट्रैक्शन है तो इट शुड बी सबट्रेंडो. ओके, सो यस, क्योंकि लोग इसको डिविडेंडो समझते हैं. इट इज नॉट डिविडेंडो. रिमेंबर दिस, इट इज नॉट डिविडेंडो. इट इज व्हाट? सबट्रेंडो. Okay, subtrahendo. Sorry, Q minus S. Correct. CBSE board is going to announce about examinations. If addition होगा तो addendo. Okay. If addition होगा तो addendo. Like if it is like this. ऐसा. If it is like this, it is addendo. Actually सभी को मिला के अपन theorem on equal ratio बोलते हैं. ये addendo, subtrahendo, ये जो है ना, दोनों को मिला के theorem on equal ratio बोलते हैं. But they won't give you such option. मतलब theorem on equal ratio और addendo दोनों options नहीं देंगे वो. Theorem on equal ratio and subtrahendo दो options नहीं देंगे वो. Either they will give you addendo और theorem on equal ratio, या फिर they will give you subtrahendo and theorem on equal ratios. ऐसे. ठीक है? So 10 questions are remaining. Tomorrow we will finish out this. Okay.
tomorrow we will finish out this and previous year question. previous year question, module question, notes question, ये सब मेरे अंडर रहेंगे. एंड जो टैक्समैन क्वेश्चन, पीसी तुलसियान क्वेश्चन जो मैंने कल स्कैन करके दिए हैं वो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है. दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कि मुझे ये चैप्टर अभी अच्छे से आता है. ओके सो इसमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है. ऐसा कोई टाइप मैंने नहीं छोड़ा कि जहां पे मॉड्यूल के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है. हाँ, tomorrow is going to be your calculator session, definitely, no doubt. Okay, tomorrow is going to be your calculator session. Everyone, please be ready with the calculators. All right. So we'll stop here. We'll continue in next class. All right. चलो, ए संपदा तू कोणता पुस्तक